Hello students, how are you? I hope so you all are fine there. So I'm glad to inform you that कि आज हम अपने प्रैक्टिस क्वेश्चंस की सीरीज के अंदर 10 क्वेश्चंस के साथ 10 कंसेप्ट्स को लर्न करेंगे जो गारंटीड हमें 6 मार्क्स रियल नंबर्स में दिलवाने वाले हैं बोर्ड एग्जामिनेशंस में. So are you all ready for it? Okay, so we'll start with our first question of today. So अपनी कॉपीज एंड पेन निकाल के बैठ जाइए ताकि आप साथ साथ हमारे प्रैक्टिस कर सके. So the first question is find the HCF of the numbers given below, and these are the numbers k, 2k, 3k, 4k and 5k. So these are the numbers and we have to find the HCF of these numbers. So students, k can be written as 1 into k, 2k can be written as 2 into k, 3k can be written as 3 into k, 4k can be written as 2 to the power 2 into k, and 5k can be written as 5 into k. Okay, so we have to find the HCF of these numbers. So what is HCF? HCF is highest common factor, and in HCF we have to take the common number with the least power. So if we see that in these numbers, what is the common number? That is k. k जो है ये इकलौता है जो सबके अंदर कॉमन आ रहा है, बिकॉज HCF में हमें कॉमन लेना होता है लीस्ट पावर के साथ, तो k ही आएगा क्योंकि इन सारे नंबर्स में k की पावर 1 ही है, और अगर ज्यादा भी होती स्टिल हमें लीस्ट पावर को ही प्रेफरेंस देनी है. तो इन सारे नंबर्स का HCF क्या आ गया? k आ गया. इजी. सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. So let's move ahead with the second question and with the second concept. So the second question is find the HCF and LCM of 90 and 144 by the method of prime factorization. So we all know that how do we prime factorize, because we have already learnt in our lectures. So if anyone have any doubt, you can go back to see that lectures. Okay, so let's start with the prime factorization of 90. First of all, so if we'll prime factorize 90, we'll get 2 at 45, then 3, 15, again 3, 5, 5, 1. And now we are going to take the prime factors of 144. It is divisible by 2 at 72, then at 2 at 36, then at 2 at 18, then at 9. So these are the prime factors we get of 144. So now we have to take the LCM and HCF. So first we'll write 90 as 2 multiply 3 exponent 2 is equals to 5, and 144 as 2 exponent 4 multiply 3 exponent 2. Is it clear? So now we have to find the HCF of 90 and 144. तो प्राइम फैक्टराइजेशन हमने कर लिया. अब हम जो है HCF निकालेंगे दोनों नंबर्स का. तो HCF में हम क्या करते हैं? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के लिए हम क्या करते हैं? कॉमन नंबर विद लीस्ट पावर. यस, सो द कॉमन नंबर इज 2 2 and 3 3, बट वी हैव टू टेक विद द लीस्ट पावर. सो 2 की पावर हमें 1 लेनी पड़ेगी, लीस्ट पावर हमें लेनी है यहाँ पर, और 3 की पावर हम 2 ही लेंगे बिकॉज यहाँ पर दोनों में 3 और 3 की पावर 2 है. सो इट विल बी 2 multiply 9 and HCF is 18. So this is the answer of HCF. अब हम LCM निकालते हैं 90 and 144 का. तो बेसिकली जब हम LCM निकालते हैं तो LCM के अंदर हमें कॉमन नंबर के साथ साथ अनकॉमन नंबर्स भी कंसीडर करने होते हैं. लाइक 2 जो कॉमन नंबर आ रहा है, जो कॉमन है उसको तो एक ही बार लिखेंगे, लेकिन हाईएस्ट पावर के साथ. HCF के अंदर हम लोएस्ट पावर में लेते हैं, LCM में हम हाईएस्ट पावर लेते हैं. तो हम 2 की पावर 1 प्रेफर करेंगे, 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 सेम है, एंड अगेन 5 90 का फैक्टर है लेकिन 144 का नहीं है, तो बट स्टिल वी हैव टू राइट. ओके, so now we can say this is 16 multiply 9 multiply 5. 16 5s we will get it as 80, and 89s will get 720. So we will get the LCM of 90 and 144 as 720. So this is the answer of LCM and this is the answer of HCF. So I hope so this question is clear to you. Let's move ahead. This is the third question. Given that HCF of these two numbers is 18 and we have to find the LCM of these two numbers.
So how can we do this? Any guesses you have in your mind? Okay, might be you are correct. Some of you have correctly guessed it that whenever we have this type of question, we will start this question with the formula LCM into HCF is equals to product of two numbers. Yes. So now the LCM is don't know, we have to find it. HCF हमें दिया हुआ है 18 और हमें दो नंबर्स दिए हुए 306 एंड 1314. सो अगर हमें LCM की वैल्यू निकालनी है तो हम इस 18 को इधर शिफ्ट कर देंगे और इसको हमें डिवाइड करना पड़ेगा 18 से. नाउ दिस इज डिविजिबल बाय 6. 306 आता है 6 के टेबल में 51 पे और ये आता है 3 पे एंड 3 के टेबल में 51 आता है 17 पे. 17 3 जा 51. ओके, सो 17 और 1314 को मल्टीप्लाई करके जो है हमारी एलसीएम की वैल्यू आ जाएगी. सो लेट्स कैलकुलेट इट. मल्टीप्लाई सब अपनी कॉपीज में करके चेक करें. We will get 22338. So this is the answer of LCM that we are getting. So I hope so this third question is also clear to you. So this is the rough work. Let's draw the line over here. Okay. So let's move ahead with the next question. So this is a factor tree we have and we have to find the value of composite number x. So we know that जब हम factor tree solve करते हैं तो हम नीचे से start करते हैं and जैसे ये y है, y की हमारी दो branches है 5 and 13. तो y की वैल्यू कैसे आएगी? by multiplying 5 and 13. तो अगर हम 5 और 13 को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी 65. ओके, एंड अब 65 एंड 3 को मल्टीप्लाई करो तो ऑब्वियस सी बात है 195 आएगी. दैट मीन्स वी आर गोइंग करेक्ट. तो अब हम 3 और 195 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो किसकी वैल्यू आ जाएगी? x की. तो x इज नथिंग बट 3 इंटू 195 and 3 5s are 15. It will become 28 and it will become 5. So the value of x is 585. This is the answer. You can check it also. Okay. So this is the answer we get for the composite number x. Now the next question. I hope so that you are enjoying the questions and हर एक क्वेश्चन में एक नया कंसेप्ट है तो प्लीज इन क्वेश्चंस को आप खुद से जरूर ट्राई करिएगा ताकि इस तरीके के क्वेश्चंस आप कर सको. बिकॉज एग्जाम के अंदर कंसेप्ट हमें सीख के जाने हैं ना कि क्वेश्चंस को रटना है. अगर हम जितना कंसेप्ट को प्रैक्टिस करेंगे उतने अच्छी तरीके से इफेक्टिवली हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बन पाएंगे. तो आपका टारगेट होना चाहिए कि आप एक चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है सबसे पहले उसको सीखें एंड देन उससे रिलेटेड क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करें. तो आपको फिर कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आने वाली एग्जाम में और रियल नंबर्स में तो आपके पूरे 6 मार्क्स आने वाले हैं. सो नाउ द क्वेश्चन इज एक्सप्लेन वेदर दिस नंबर इज अ प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर. लेट्स चेक. फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू राइट दिस नंबर. हमें पता है कंपोजिट नंबर वो होता है जिसके फैक्टर्स 1 और उसके अलावा होते हैं. तो लेट्स सी दैट कि सिंप्लीफाई हो पा रहा है कि नहीं. अगर हम इस 12 को ब्रेक करना चाहे तो हम इसको 3 into 4 लिख सकते हैं. एंड एट नेक्स्ट स्टेप हम ये एक नंबर है सारे मल्टीप्लीकेशन में दिस इज अ सेपरेट नंबर. हमने 4 कॉमन ले लिया. हमारे पास बचेगा 3 मल्टीप्लाई 101 प्लस 1. वी आर लेफ्ट विद इट. सो दिस कम्स आउट टू बी 909. 3 3s are 9 and you will multiply it. So you'll get this 4 into 910. So if you want to take the factors of these you can. क्योंकि 4 के भी हमारे पास अच्छे खासे फैक्टर्स आ जाएंगे. दैट इज 2 की पावर 2. 910 की हम लेंगे तो ये आएगा 91 होता है हमारा 13 7s. सो दिस इज 13 into 7 into 2 into 5. So we can see that we have a lot of factors other than 1 in itself. So obviously it is going to be a composite number. So at last we can write that it is a composite number as it has
factors other than 1 and itself. Okay, so this is how हमने इस नंबर को कंपोजिट प्रूव किया. अगेन डिजिट्स आपको चेंज करके दे सकते हैं, देयर इज नॉट एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम. ये प्राइम नंबर उन्होंने सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया. ऑलमोस्ट इस तरीके के क्वेश्चंस हमारे कंपोजिट ही आते हैं, बिकॉज अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास 1 एंड इटसेल्फ के अलावा तो फैक्टर्स आराम से मिल ही जाता है. ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. दिस इज क्वेश्चन नंबर 6. Find the smallest natural number by which 1200 should be multiplied. अब 1200 को हमें किसी smallest natural number से multiply करना है, ताकि जब हम उसका square root लें multiply करने के बाद smallest number से, so वो हमारे पास एक rational number आना चाहिए. So सबसे पहले तो हमें 1200 के prime factor लेने पड़ेंगे. In first step we have to prime factorize 1200. So let's start prime factorizing 1200. So अगर हम इसको देखो, आपको अगर इस क्वेश्चन को इजी लिखना है, इजी तरीके से ब्रेक करना है, तो आप इसको प्राइम फैक्टराइज ऐसे भी कर सकते हो 12 into 100. तो आपको प्राइम फैक्टर्स इजी रहेगा निकालना, अदरवाइज आपके लिए बहुत लेंदी होगा. तो आप 1200 के भी डायरेक्टली निकाल सकते हो अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो. अदरवाइज आप इसको इस तरीके से स्प्लिट करके भी लिख सकते हो. सो सपोज अगर हम 12 के फैक्टर्स ले, तो 12 के फैक्टर्स तो हम बहुत इजीली निकाल सकते हैं. इट इज डिविजिबल बाय 2 at 6, देन 6 at 2, लाइक दिस. वी विल गेट द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 2. इट्स 2 into 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3. अब हम 100 पे स्विच करते हैं. अगर हम 100 की बात करें तो इसकी भी बहुत इजीली हम निकाल सकते हैं. ये आ गए हमारे पास 100 के फैक्टर्स, 2 into 2 into 5 की पावर 2. तो अब हमारे पास ये 2 की पावर 2 को कंबाइन करके हम 2 की पावर 4 लिख सकते हैं into 3 into 5 की पावर 2. तो ये हमारे पास किसके फैक्टर्स आ गए? 1200 के ही फैक्टर्स आए. अगर आप कंबाइन करके लोगे तब भी आपका सेम ही आंसर आएगा. अगर हम इन नंबर को देखें तो अगर हमें स्क्वायर रूट बनाना है, एक्चुअली स्क्वायर रूट क्या होता है? स्क्वायर रूट इज समथिंग जिसका जब हम रूट ले तो वो सॉल्व हो जाए. तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होता है? नंबर पेयर में चाहिए. हमें स्क्वायर रूट निकालने के लिए पेयर बनाने पड़ते हैं नंबर्स के. तो पेयर तभी बन पाएगा जब पावर इवन हो. अब जैसे 2 की पावर 4 है, ये इवन नंबर है, तो आप इसको पेयर अप कर सकते हो. जैसे हमारे पास 4 2 आएंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, तो एक इसका पेयर बन गया, एक इसका पेयर बन गया. इन द सेम वे अगर हम 5 की बात करें तो 5 का भी पेयर बन गया, क्योंकि 5 की भी पावर इवन है. लेकिन जो 3 है, 3 अकेला रह गया, इसका कोई भी पेयर नहीं मिला. तो अगर हमें 3 का पेयर चाहिए, क्योंकि हमें इसको स्क्वायर रूट बनाना है, परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, तो हमें इस नंबर को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 3 से. सो हम क्या लिखेंगे? देयरफॉर 3 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर बाय विच 1200 should be multiplied. तो आप इसको चेक भी कर सकते हो. अगर आप 1200 को 3 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपका 3600 आएगा. और 3600 एक परफेक्ट स्क्वायर है. किसका? 3600 का अगर हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या आंसर आएगा? 60. ओके, सो इस तरीके के क्वेश्चन में हमें इस तरीके से सॉल्व करना है. ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Let's read the question first. Can two numbers have 15 as their HCF and 175 as their LCM? Give reason. ये assertion reasoning या फिर solving 2 marks में आ सकता है क्वेश्चन, और आया हुआ भी है बोर्ड एग्जामिनेशंस में प्रीवियस ईयर अगर आप चेक करोगे तो. अभी 2 नंबर्स है हमारे पास, 15 एज एन HCF. तो हम लिख लेते हैं पहले. हमें 15 उन्होंने HCF दे दिया और LCM हमें दे दिया 175. तो हमें नहीं पता कि कौन से 2 नंबर्स को सॉल्व करके HCF और LCM उन्होंने निकाला है. तो अब वो हमसे पूछ रहे हैं कि ये पॉसिबल है, ये सिनेरियो पॉसिबल है. तो इस चीज को हम चेक करने के लिए किस तरीके से करते हैं कि जो हमारा LCM है वो हमेशा HCF से पूरा का पूरा डिविजिबल होना चाहिए. मतलब 175 को अगर हम 15 से डिवाइड करेंगे तो वो एग्जैक्टली डिविजिबल होना चाहिए. मीन्स LCM इज ऑलवेज अ मल्टीपल ऑफ HCF. वी कैन से दैट कि LCM शुड always be a multiple of HCF. okay, so अगर हम देखें कि 175 LCM
should divisible by HCF and we should get a number which should be an integer value or not an integer. In fact, we should say it should be a natural number. So अगर हम 175 और 15 को डिवाइड करें तो ये दोनों ही 5 से कैंसिल होते हैं, ये जाएगा 3 पे, और अगर हम 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो we will get 33 over here. Okay, yeah, no, sorry, if we divide it with 3 we will get 35. Okay, so now this 3 and 35 is not divisible completely. We know that 35 is not a multiple of 3, it is not divisible completely because हमारा पॉइंट में आंसर आएगा. सो हम क्या कह सकते हैं कि कोई भी दो नंबर्स ऐसे नहीं है पॉसिबल जिनका HCF 15 और LCM 175 है. सो एट लास्ट वी कैन कंक्लूड दैट देयरफॉर इट इज नॉट पॉसिबल that two numbers have HCF as 15 and LCM as 175. Okay, clear? So this is how we have to do this. Calculations का थोड़ा आपको ध्यान रखना है. Now in the next question, what is next question? We have to check whether 4 to the power n can end with digit 0 for any natural number n. So if we want to check that whether 4 to the power n can end with digit 0 for any natural number n, what we can do? We can say that अगर हम 4 की पावर n को डिजिट 0 से एंड करवाना चाहते हैं, मतलब अगर हम n की वैल्यू सपोज 0 रख रहे हैं या 1 रख रहे हैं या 2 रख रहे हैं, तो सॉल्व करके we should get something. सॉरी फॉर दिस ग्लिच. सो अगर हम 4 की पावर n सॉल्व कर रहे हैं तो n कुछ भी हो सकता है, n इज एनी नेचुरल नंबर बेसिकली. तो वी कैन पुट द वैल्यू फ्रॉम 1 to like that we have an infinite range of numbers. लेकिन अगर हम n की वैल्यू पुट करें, सपोज 1 पुट कर रहे हैं, 2 पुट कर रहे हैं, 3 पुट कर रहे हैं, अप टू n पुट कर रहे हैं, तो हमारे पास कुछ ऐसा नंबर आना चाहिए जिसकी डिजिट एंड हो 0 से. 0 से कब कोई चीज एंड होती है? जब उसका फैक्टर 2 या 5 हो. ठीक है, तो मतलब 4 के अगर हम प्राइम फैक्टर्स ले तो उसमें 2 और 5 दोनों आना चाहिए. तो अगर हम प्राइम फैक्टर्स ऑफ 4 की बात करें, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 4 की अगर हम बात करें तो उसके अंदर तो 2 और 5 आता ही नहीं है, बिकॉज प्राइम फैक्टर्स ऑफ 2 इज 2 into 2. 5 भी तो होना चाहिए. तो हम बोल सकते हैं एज prime factors of 4 do not have 2 and 5 both should be compulsory. Therefore 4 to the power n cannot end with digit 0. सो अब ये 4 की पावर n है, 7 आ सकता है, कुछ भी नंबर आ सकता है. बस हमें यही देखना है कि जो भी हमें नंबर दिया हुआ हो विद डिजिट 0, जो भी हमें नंबर दिया हुआ हो उसके जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो 2 and 5 दोनों होने चाहिए. अगर दोनों में से कोई भी मिसिंग है तो वो कभी भी डिजिट 0 से एंड नहीं करेगा. तो इस तरीके से हमें सिंपली चेक करना होता है. लेट्स मूव अहेड टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन. So the next question is, if two positive integers p and q are written as this. So हमारे पास दो नंबर्स दिए हुए हैं, p दिया हुआ है ये, और ये हमें दिया हुआ है q. a and b are prime numbers. a और b हमें दिया हुआ है प्राइम, मतलब कि हम इसको फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते, उन्होंने ऑलरेडी हमें लोएस्ट फॉर्म में दिया हुआ है. ओके, सो हमें ये वेरीफाई करना है कि अगर हम एलसीएम निकालेंगे, इन दोनों का एचसीएफ निकालेंगे, तो ये p into q के बराबर आएगा. p and q हमारे दो नंबर्स हैं. ओके, सो सबसे पहले तो हम एलसीएम निकालते हैं p and q का. एलसीएम में हमें क्या देखना होता है? हाईएस्ट पावर, a स्क्वायर a क्यूब, तो a क्यूब लेंगे, b क्यूब या फिर b, ऑब्वियसली b क्यूब लेंगे, हाईएस्ट पावर लेनी है, और कुछ इसके अंदर और भी कोई मल्टीपल इसके साथ लिखा नहीं है, a स्क्वायर b क्यूब और a क्यूब b के साथ. अब हम HCF लेते हैं. HCF के अंदर हमें कॉमन नंबर विद लीस्ट पावर, कॉमन a दोनों में है,
लेकिन लीस्ट पावर लेनी है, बी दोनों में है लेकिन लीस्ट पावर लेनी है। तो एलसीएम और एचसीएफ हमने निकाल दिया, यहां तक का काम हमारा हो गया। अब हमें पता है हमारे पास एक थ्योरम होती है, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो यही हमें यहाँ पर वेरीफाई करनी है। अगर हम इसको ध्यान से देखें हमें यही वेरीफाई करना है। तो अगर हम एलसीएम की बात करें तो ये ए क्यूब बी क्यूब है, और अगर हम एचसीएफ की बात करें तो ये ए स्क्वायर भी है, और हमारे जो दो नंबर्स है वो है पी डॉट क्यू। ओके, सो अगर हम इसका जो हमें वेरीफाई करना है उसकी राइट हैंड साइड देखें तो राइट हैंड साइड पर तो हमारा पी क्यू ही आ रहा है, मीन्स हमें पी क्यू की वैल्यू पुट नहीं करनी। सो हमें एलसीएम और एलसीएम इंटू एचसीएफ वाली मीन्स लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा ए क्यूब बी क्यूब। अगर हम पी नंबर को देखें तो ये ए स्क्वायर है, तो हम ए स्क्वायर इंटू बी क्यूब को साथ में रख लेते हैं, यहां से इस ए स्क्वायर और बी क्यूब को साथ में रख लिया, और ए क्यूब और बी यहां से इस ए क्यूब को और इस बी को अलग कर दिया, इज इक्वल्स टू पी डॉट क्यू। तो अगर हम ए स्क्वायर बी की बात करें, ए स्क्वायर बी क्यूब पी है और ए क्यूब बी क्यू है। आगे हमारा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, तो ये वेरीफाई हो जाएगा। तो वी कैन से दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हेंस वेरीफाइड। सो इस तरीके से हमें जो है इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है एग्जाम में, और ये क्वेश्चन कम से कम अच्छी खासी 3 नंबर की वेटेज में आएगा। एंड बहुत इजीली हमने इसको वेरीफाई कर लिया विद द सिंपल कंसेप्ट्स। दिस क्वेश्चन इज नॉट मोर गोइंग टू टफ फॉर अस बिकॉज स्टूडेंट्स यूजुअली कंफ्यूज्ड आफ्टर सीइंग दिस पी एंड क्यू एंड दिस ए एंड बी। सो डोंट नीड टू वरी, हमें सिंपल स्टेप्स को जो हमने लर्न किया है उसी को फॉलो अप करना है एंड अपना आंसर निकालना है। So let's move to the last question of our today's class. That is, root 5 is an irrational number and hence show that 2 minus root 5 is also an irrational number. So सबसे पहले तो हमें root 5 को जो है irrational करना, और ये अच्छा खासा 5 मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है आपका एग्जाम के अंदर। ओके, सो अब देख लो, अगर 5 मार्क्स का यही क्वेश्चन आ गया तो आपको सिर्फ 1 मार्क्स का ही क्वेश्चन करना है, और वो बहुत ही सिंपल रहने वाला है, लाइक एलसीएम या कोई एचसीएफ निकालने के लिए दे देंगे, वो भी एमसीक्यू पार्ट के अंदर। तो 6 मार्क्स तो डेफिनेटली आपके पक्के होने वाले हैं। तो रूट 5 को सबसे पहले हम इरेशनल करते हैं। तो हमें पता है इरेशनल मेथड प्रूव करने के लिए हमें कॉन्ट्राडिक्शन यूज करना पड़ता है। तो वी विल राइट लेट रूट 5 बी अ रैशनल नंबर। यस, रूट 5 को हमने रैशनल नंबर मान लिया, और अगर रूट 5 रैशनल नंबर है तो इट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, वेयर डिनोमिनेटर हमारा 0 नहीं होना चाहिए और पी एंड क्यू दोनों हमारे को प्राइम नंबर्स होने चाहिए, मीन्स इनका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 है, 1 के अलावा नहीं है। तो ये हमने एज्यूम कर लिया एट द स्टार्टिंग ऑफ द क्वेश्चन। ओके, सो उसके बाद हम क्या करते हैं, हम क्यू को इधर मूव करते हैं, देन दोनों साइड्स स्क्वायरिंग करते हैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड्स। इन तरीके के क्वेश्चंस में ऑलरेडी इजी होते हैं, क्योंकि हमें क्या है, एक ही प्रोसीजर को हर एक टाइप के क्वेश्चन में फॉलो करना है इरेशनल प्रूविंग के, लेकिन हमें वो ये स्टेप्स को बहुत प्रिसाइजली लिखना पड़ेगा, अदरवाइज हमारे मार्क्स कट सकते हैं एंड वी कांट अफोर्ड दैट कि हम इजी चीजों में भी मार्क्स कटवाएं। ओके, सो दिस इज 5q स्क्वायर इज इक्वल्स टू p स्क्वायर। सो अगर हम बात करें ये 5 जो है इसको मैं इधर जाके p के नीचे डिवाइड कर दूं, इसका मतलब क्या है कि p इज डिविजिबल बाय 5, therefore p is divisible by 5। और अगर p 5 से डिविजिबल है, yes स्टूडेंट्स, if p is divisible by 5, तो we can say that ना कि p का एक और फैक्टर हमें मिल गया 5, क्योंकि p डिविजिबल हो रहा है 5 से। ओके, तो अब हम यही प्रूव करेंगे q के साथ भी कि q का भी फैक्टर 5 है। अब कैसे करेंगे, उसके लिए हम पुट कर देंगे p को 5c। अब जब हमने p को 5c सब्स्टिट्यूट करा यहां पर, this is 5, this is 5, okay, so this is 25c square अपॉन 5 तो है इसके नीचे अपॉन 5। सो क्या आने वाला है हमारा, q स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5c स्क्वायर। और अब इस 5 को हम q के नीचे ले जाते हैं। अब q के नीचे अगर 5 है, दैट मीन्स q इज डिविजिबल बाय 5, तो वी कैन राइट दैट देयरफॉर q is also divisible by 5।
अब q भी हमारा 5 से जो है डिविजिबल हो गया, p भी हमारा 5 से डिविजिबल है, मतलब दोनों का कॉमन फैक्टर 5 है। तो हम लिख सकते हैं एज p and q both are divisible by 5. Yes students, both are divisible by 5. Then it has common factor other than 1, that is 5. तो ये को प्राइम तो रहा नहीं, क्योंकि को प्राइम का मतलब तो क्या होता है कि सिर्फ कॉमन फैक्टर बनाना चाहिए। भाई पी और क्यू का तो कॉमन फैक्टर 5 भी आ रहा है, तो इट मीन्स हमारी जो अजम्पशन थी वो रॉन्ग हो गई। तो वी कैन से दैट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स आवर अजम्पशन। कौन सी अजम्पशन कॉन्ट्राडिक्ट हुई है? दैट √5 इज अ रैशनल नंबर। अब भाई √5 रैशनल नंबर नहीं है, ऐसा तो हमने कंसीडर किया था, स्टार्टिंग में कंसीडर किया था रैशनल नंबर, लेकिन इसने तो कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया, उल्टा कर दिया हमारी स्टेटमेंट को। तो हम क्या लिख सकते हैं? हेंस √5 इज एन इरैशनल नंबर। तो यहां तक जो है हमें 3 मार्क्स मिल गए। अब हमें 5 मार्क्स चाहिए इस क्वेश्चन में पूरे। एवरीवन नीड्स 5 मार्क्स इन दिस क्वेश्चन बच्चा। सो व्हाट वी हैव टू डू नाउ, अब हमें क्या करना है? 2 माइनस √5 को इरैशनल प्रूव करना है। ओके, सो लेट्स मूव अहेड इन द क्वेश्चन एंड लेट्स चेंज द कलर ऑफ दिस पेन। बहुत देर से हम ये पेन यूज करें। ओके, चलो अब हमारी बारी है 2 माइनस √5 को इरैशनल प्रूव करना। सो आई होप सो ऑल आर यू रेडी फॉर इट। सबसे पहले हम क्या करेंगे? लेट 2 माइनस √5 बी अ रैशनल नंबर। यस, तो अब जो कि रैशनल नंबर है तो भाई इसको हम लिख सकते हैं P अपॉन Q के फॉर्म में, वेयर P Q हम क्या कंसीडर करते हैं? को प्राइम नंबर्स, एंड डिनोमिनेटर 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ऑलराइट, ओके, सो √5 को अकेला रहना है, रूट वाला नंबर अकेला रहना चाहता है, तो भाई +2 को इधर भेज दो, अकेला छोड़ो √5 को। अब यहाँ पर जो है हम डिनोमिनेटर सेम कर लेंगे। वी कैन से दैट ये इधर मल्टीप्लाई इधर और ये इधर, क्रॉस मल्टीप्लाई से हमने डिनोमिनेटर सेम कर लिया। अब √5 अकेला रहना चाहता है तो इस माइनस को भी इधर भेज दो। आप इसको न्यूमरेटर में भी शिफ्ट कर सकते हो, डिनोमिनेटर में भी शिफ्ट कर सकते हो, दैट्स अप टू यू। और अगर इस नेगेटिव साइन को हमें ऊपर लेके जाना है तो न्यूमरेटर के साइन हमारे जो है चेंज हो जाएंगे, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो आई होप सो हमारा यहाँ तक आ गया। अब हम क्या लिखेंगे? एज 2q माइनस p अपॉन q, ये जो है हमारे किस फॉर्म में है? इज इन द फॉर्म ऑफ a अपॉन b, जो रैशनल नंबर का फॉर्म होता है। सो इट मे बी अ रैशनल नंबर, तो ये रैशनल नंबर हो सकता था। इट मे बी अ रैशनल नंबर, लेकिन क्या ये रैशनल है? नहीं है। एग्जैक्टली वाई रैशनल नहीं है? क्योंकि √5 जिसको हम इरैशनल ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं, एंड अ रैशनल नंबर कैन नॉट बी इक्वल्स टू इरैशनल नंबर। तो हम क्या लिखेंगे? एज √5 is an irrational number, तो a अपॉन b के फॉर्मेट में चाहे ये आ रहा है लेकिन ये रैशनल नहीं होगा। तो अगेन हमारी अजम्पशन कॉन्ट्राडिक्ट हो गई। दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स आवर अजम्पशन। कौन सी अजम्पशन? दैट 2 माइनस √5 is a rational number. Hence, 2 minus √5 is an irrational number. Again, I am saying कि इसमें से कोई भी स्टेटमेंट आप मिस मत करना, नहीं तो आपके मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं। ओके, सो ये हमारा क्वेश्चन था कि √5 इरैशनल करो, उसके बाद 2 माइनस √5 को इरैशनल करो। दैट मीन्स कि जैसे 2 माइनस √5 में √5 आ रहा है तो पहले हमने उसे इरैशनल किया एंड देन 2 माइनस √5 को। डिजिट्स चेंज हो सकती हैं, एक्सप्रेशन भी चेंज हो सकता है,
लेकिन हमें पता है कि कुछ भी चेंज हो जाए, लेकिन हमें इसके अंदर पूरे जो है 5 मार्क्स मिलेंगे एक्यूरेटली, बिकॉज वी नो द स्टेप्स. ओके, सो दिस इज हाउ वी हैव लर्नड 10 concepts along with 10 questions. So I hope so that कि ये सारे के सारे questions आपसे हो गए होंगे, एंड अगर नहीं भी हुए हैं या फिर कहीं भी किसी भी स्टेप में आपको दिक्कत आ रही है तो आप प्लीज इन्हें रीप्रैक्टिस करिए, एंड आई एश्योर यू दैट कि आपसे ये questions हो जाएंगे. ओके स्टूडेंट्स.